कौन सा टॉपिक? Chalo. Okay, so let's begin the day and the, as I said, proceedings of the day. I hope you all had a great weekend to have gathered all the battery charging process and must have gathered all the energy required for the subsequent weeks of it. वैसे ये हम लोग का लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो गया that we have a weekday system and there is a weekend system also, and weekend is supposed to be like if you look at the energy level on the Mondays, it should be on a better plane. Why? Because we had a rest on Saturday and Sunday, and then the energy level goes on decreasing from Monday to Tuesday and so on. So by Friday, we all start searching for a holiday, isn't it? And that's what we fortunately get on the weekends. And then we charge our batteries on the weekends, and then we again become refreshed for the journey ahead for the next week. I think that's what is our perpetual journey throughout the year most, isn't it? Chalo. Anyway, so we were discussing about last class में हमने discuss किया था about we just started in fact our journey on circular motion. तो मैं quick summary दे देता हूँ on what we have read till now, and then we will go ahead from that. ठीक है? तो quick summary is like this कि अगर मान लो कोई भी circle में कोई particle चल रहा है, तो in that case depending on the point and whatever, so there will be a tangential velocity, है ना? और उस tangential velocity का magnitude क्या होगा? Omega r. Right? Now, what will be the direction of the tangential velocity will depend on the sense of omega. ठीक है? तो जैसे अगर इस पॉइंट पे देखते हो तो टेंजेंशियल वेलोसिटी या तो इधर होगा या तो इधर होगा, है ना? देख लो, या तो इधर होगा या तो इधर होगा. अब इन दोनों में से कौन सा होगा? That will be decided by the sense of omega. तो अगर मान लो ओमेगा इस तरफ है, ठीक है ना, clockwise, so this will be the direction. If omega is anti-clockwise, then this will be the direction. यानी ओमेगा के सेंस के हिसाब से हम velocity vector का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे. ठीक है? That's about tangential velocity. इसके अलावा क्या है ना? इसके अलावा है एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन के दो पार्ट्स है. एक है tangential acceleration which is alpha, again depending on the sense of alpha. ठीक है ना? Okay, Yash has sent me a question it seems. चलो ठीक है, मैं देखूंगा बेटा. ठीक है? Tangential acceleration is alpha and radial acceleration is equal to omega square r. Now these are things that we have studied in the last class. ठीक है? अभी अल्फा का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, है ना? तो इसके लिए मैं एक जनरल रूल ऑफ थंब बता देता हूं, इज दैट if magnitude of omega is increasing, then direction of Vt and At is same. ये डायरेक्शन इसलिए क्रिटिकल डिस्कशन है क्योंकि देखो टेंजेंट एक्चुअली दो होता है नहीं? टेंजेंट तो दो होता है ना, क्योंकि अगर मैं डायरेक्शन यहाँ पे देखता हूँ टेंजेंट ये भी है, तो इसमें से कौन सा डायरेक्शन लिया जाए? तो उसके लिए क्रिटिकल डिस्कशन ये हो रहा है that if the magnitude of omega is increasing, then direction of Vt and At is same, otherwise opposite. ठीक है? Otherwise opposite. So that's some kind of a rule. I mean, ये तो हो गया अल्फा यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन. इसके अलावा क्या है? This is always towards center. तो ये हो गया AR यानी A radial is equal to omega square R. I think not very difficult. तो मैं एक काम करता हूँ just to start the day as a warm up question kind of. मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको सॉल्व करो तो you will get a better idea कि exactly how to proceed, and then from then we will move on to something new. ठीक है? तो मैं एक रिवीजन टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ. Suppose I say that this is the direction of omega and that is equal to 10 radian per second, and this is decreasing every second, every 2 seconds by 10 radians per second. ठीक है? यानी हर 2 सेकंड बाद यूनिफॉर्मली
यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है बाय 10 सेकेंड्स। नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, रेडियस इज लेट्स से 2 मीटर्स, ठीक है। तो मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, एक है ए विच इज एट एन एंगल ऑफ सपोज 37 डिग्री, और एक है बी विच इज द मिड पॉइंट हियर। तो तुमको ए और बी दोनों पॉइंट्स के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना। Quickly go ahead. So let this be the warm up question. Let's quickly get the answer and then move on to something new. ठीक है ना? ये जो हमने लास्ट क्लास सीखा था या डिस्कस किया था, उसी का समझ लो कि एक समरी काइंड ऑफ। ये रॉड है क्या? नहीं, ये एक डिस्क है। अच्छा, डिस्क है। अच्छा, ठीक। और डिस्क विद ओमेगा गिवन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, ठीक है ना। और पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम हियर and point B is the midpoint actually. वेलोसिटी निकालनी है या फिर वेलोसिटी? नहीं, दोनों निकालना है, velocity and acceleration. So like for A as well as B, you have to find out the velocity vector and acceleration vector. ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ है कि ओमेगा is decreasing every 2 seconds by 10 radian per second. Now that is the calculation that has been given at this moment. तो इससे जो भी कंक्लूजन करना है करो, और उसके बाद रेडियस 2 मीटर है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, और डू इट फास्ट सो दैट वी कैन डू समथिंग। टाइम तो बताओ, किस टाइम पर निकालना है? इसी इंस्टेंट पे। सी व्हेन नथिंग इज गिवन मींस एट दिस इंस्टेंट। तो अल्फा का फायदा क्या फिर? हां, फिर अल्फा का फायदा क्या? नहीं, सब फायदा है। इतना जल्दी डिस्कशन मोड में बताओ, पहले खुद ट्राई करो, देन वी विल डिस्कस। सब फायदा है, ऐसे बात नहीं। quickly get to the solution. सर निकालना क्या है? अब बेटा दे दिया गया पॉइंट ए और पॉइंट बी का वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल, ठीक है ना। देखो, पहली बात तो वेलोसिटी में क्या होगा ना, ओमेगा। अगर मैं ए पॉइंट देखता हूं तो ये ओमेगा का सेंस है, यानी क्लॉकवाइज है, तो देयरफॉर ऑब्वियसली ये हो जाएगा इसका आंसर। ओमेगा कितना हो गया? 10 × 2 = 20। लेकिन ये जो 20 है, इस पे हमें फिर एंगल का सेटिंग करना पड़ेगा। ये 37 है तो ये 53 होगा, फिर 37 है तो ये हो जाएगा 53, है ना। देख लो, फाइन। तो देयरफॉर 20 cos 53 यानी 12 और sin 53 यानी 16, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फिर ना, 12 I cap माइनस 16 J। देख लो सर, वापस रिपीट करना। हाँ बेटे, सर अब वापस रिपीट करना, आपने क्या किया अभी? हाँ एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है ना, ओमेगा। चलो, ओमेगा तो 10 हो गया, आर हो गया 22 यानी कि होगा 20। और एंगल कैसे होगा ना, देखो ये 37 डिग्री दिया है, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये 53, ये टेंजेंशियल है तो ये 37, ये 90 डिग्री तो ये 53, या जैसे मर्जी कर लो, या इसको प्रोड्यूस कर लो तो ये 37 हो तो ये 53। एंगल तो चलो जैसे मर्जी निकाल लो। ये 20 cos 53 I cap एंड माइनस 20 sin 53 J cap, ये आंसर है। देखो ये I cap वाला और ये J cap, ठीक है। और कुछ आंसर्स आ रहे हैं वैसे तो लावण्य ने भी दिए हैं, लेकिन आंसर उस तरीके से नहीं चलेगा बेटे, वो I cap J cap में चाहिए, इसलिए मैंने बोला था कि I cap J cap के फॉर्म में। तो 12 I cap minus 16 J cap is what you're getting as 12 16, ठीक है ना। तो ये हो गया ए वेक्टर, ए पे वेलोसिटी वेक्टर। ए पे जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो क्या होता है, दो वेक्टर होता है, याद है ना। एक टेंजेंशियल, लेकिन ये क्योंकि डिक्रीजिंग एवरी 2 सेकंड्स बाय 10 रेडियन पर सेकंड, यानी इस बार अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 रेडियन पर सेकंड, एंड क्योंकि ये डिक्रीजिंग है यानी ऑपोजिट टू दैट ऑफ ओमेगा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि
वेलोसिटी में तो चलो इधर हो गया टेंजेंशियल, लेकिन एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इधर होगा। ठीक है, अगर याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा की पॉइंट बताया था कि अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, प्लीज रिपीट, ओमेगा का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ता जा रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। और अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देयरफॉर 80 कितना होता है, अल्फा इंटू आर इज 2, देन ये हो गया 10। और अगर ये 53 है तो ये भी 53 होगा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो 10 cos 53 यानी -6 i कैप प्लस 8 j कैप। बट अभी रुको, ये एक पार्ट आया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। अभी एक और होगा ओमेगा स्क्वायर आर यानी रेडियल एक्सेलरेशन। तो ओमेगा स्क्वायर आर कितना हो गया 10 स्क्वायर और आर बोलते 2 तो 100, लेकिन 100 किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स सेंटर। देखो ये हो गया 100 टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो 100 into 2 that is 200, सॉरी, तो टुवर्ड्स सेंटर। फाइन, तो टुवर्ड्स सेंटर अगर होगा तो ये 37 डिग्री है यानी cos 37 डिग्री यानी 4/5 यानी 160 इधर हो गया और इधर हो जाएगा 120, ठीक है। 3/5 यानी -160 i कैप माइनस 120 j कैप, थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर। यानी नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया -160 -6 यानी -166 i कैप और -112 j कैप। देखो ये आंसर आएगा सर हाँ बेटे। सर जैसे हमने जो ए पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर निकाला सर, तो सर जो वो वेलोसिटी होगी सर वो डिक्रीज भी तो करेगी, मतलब देखो बिल्कुल करेगा। देखो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा होता कि इस पॉइंट का 1 सेकंड बाद बताओ क्या होगा, तब तो ये सब कहानी वैलिड था कि भाई ये तो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही था। लेकिन मैंने इस इंस्टेंट पे पूछा तो इस इंस्टेंट का ओमेगा से इस इंस्टेंट का वेलोसिटी वेक्टर निकला। बाकी ऑब्वियसली इंस्टेंट टू इंस्टेंट वेरी करेगा, थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। बट अभी तो इस वक्त का पूछा है ना, तो हमें इस वक्त का आंसर देना है नहीं। तो सर मतलब कि जब हमें उसी इंस्टेंट पे निकालना है तो टाइम वाइम का मतलब नहीं देखना, ओमेगा आर ही होगा वो हाँ नहीं, ओमेगा आर तो थोड़ी देर बाद भी होगा, पर थोड़ी देर हाँ बाद सर, क्या होगा ना, थोड़ी देर बाद वाले ओमेगा इंटू आर। हाँ सर वो डिक्रीज कर जाएगा अगर वो हाँ तो कर डिक्रीज रहा कर होगा। जाएगा, कुछ कुछ होगा, चेंजेस होंगे। आज अभी इस क्वेश्चन में डिक्रीज है, कल को इंक्रीज भी करेगा, तो वो तो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग। पॉइंट इज दैट जिस इंस्टेंट का वेलोसिटी वेक्टर निकालना है उस इंस्टेंट का ओमेगा अगर बदल रहा है ना। चलो सो दैट्स हाउ वी हैव गॉट द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर फॉर पॉइंट ए। पॉइंट सी थोड़ा सा आसान है। एक्सप्लेन कर दोगे ये वाला क्वेश्चन? हाँ बेटे, सर एक और बार एक्सप्लेन कर दोगे ये वाला क्वेश्चन? देखो कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, टेंजेंशियल। लेकिन क्योंकि दो टेंजेंट होता है तो ओमेगा के हिसाब से, तो देखो ओमेगा के हिसाब से देखो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, तो कितना हो गया ओमेगा आर तो यानी 10 into 220 तो यानी 20 मीटर पर सेकंड। और टेंजेंट है तो टेंजेंट की ये 37 डिग्री था तो वो एंगल निकाला 53, तो 20 का cos 53 और sin 53। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब आई कैप पॉजिटिव जे कैप नेगेटिव, दैट्स इट, चलेगा ना। तो वही चीज आ गई, तो देखो आई कैप पॉजिटिव जे कैप नेगेटिव। अब हो गया क्लियर बेटे? यस सर। एक्सेलरेशन का भी बताऊं? नो सर। एक्सेलरेशन भी उसी तरीके से ही है, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो देयरफॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो अल्फा आर है, तो अल्फा आर तो ये 10 हो गया, 10 का फिर cos 53 sin 53 सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए ये वाला आंसर। और ओमेगा स्क्वायर ये वाला उसका भी कंपोनेंट कर दिया, तो कंपोनेंट ऑपरेटर तो थोड़ा सा खुद से करना शुरू कर दो, मैं तो ऐसे डायरेक्टली बता दिया। अच्छा बी पॉइंट थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है क्योंकि इसमें कोई कंपोनेंट का जरूरत नहीं, सीधे सीधे आंसर्स आएंगे। कैसे आएंगे? अब देखो ओमेगा आर, तो यहाँ पे एक सर्कल अगर मैं बनाता हूँ तो ओमेगा आर बोलते क्या होगा, ये वाला होगा, ये देखो ओमेगा आर, लेकिन इसका आर अलग हो गया, इसका आर हो गया 1, तो ओमेगा 10 है और आर 1 है, यानी वेलोसिटी कितना हो गया 10 जे कैप, ठीक है। तो देयरफॉर बी का तो बहुत आसान हो गया, वेलोसिटी हो गया 10 जे कैप। आई होप दैट्स क्लियर। अब आ जाओ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा ना, टेंजेंशियल और रेडियल। टेंजेंशियल का क्या होगा ना, इस पर्टिकुलर केस में अपोजिट, क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग है, तो कितना होगा ना अल्फा इंटू आर, तो अल्फा 5 R1
यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन किधर इधर होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का टेंजेंशियल इधर है और ये डिक्रीजिंग है, तो इसलिए इस तरह, यानी हो गया -5 j कैप, ये टेंजेंशियल, यानी -5 j कैप टेंजेंशियल। नेट लॉसेस। आई होप दैट्स ओके। रेडियल सर, रेडियल का क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, रुको। अब रेडियल पे आ जाओ। तो रेडियल कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर r, लेकिन 1 है क्योंकि इसका तो 1 है ना, मिड पॉइंट बोला था ना, तो लाइक रेडियस 2 मीटर, तो मिड पॉइंट 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर r क्या होगा? टुवर्ड सेंटर, यानी कितना? यानी 100 i कैप। तो ये हो जाएगा -5 j कैप प्लस 100 i, है ना, टुवर्ड सेंटर। ठीक है, ये जो ओमेगा स्क्वायर r होता है, ये हमेशा होता है टुवर्ड्स सेंटर। फाइन। तो ये दोनों कंपोनेंट्स निकल गए, जिससे कि ये पता चल गया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना होगा फॉर एनी गिवन पॉइंट। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना इज दैट यहाँ पे हमने एक एजम्पशन किया और वो था कि इस पूरे डिस्क का सेंटर रेस्ट पे है। ठीक है, जो कि हमेशा नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक काम करो, एक फैन ले लो जो कि कार में लगा रहता है कई बार, या इवन ट्रेन में भी देखना कई बार फैंस वगैरह लगा रहता है। हर कोच में तो नहीं होता, बट कुछ कोचेस में होते हैं। तो अगर मान लो सोचो कि फैन को मैंने ऑन किया ही नहीं, यानी फैन बस लटका हुआ है और ट्रेन चलना शुरू करता है विद सम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी फैन के एक एक पॉइंट पे वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो रहेगा ही जो ट्रेन का है। ऊपर से मान लो मैंने उसको ऑन कर दिया, तो क्या होगा? उसका ओमेगा आर और ओमेगा स्क्वायर आर वगैरह ये सब भी आएंगे, या अल्फा आर, वो सब भी आएंगे या नहीं? हाँ, तो यानी क्या होगा? अब हमें इनको सुपरपोज करना पड़ेगा। यानी अभी तक हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इज टेंजेंशियल इक्वल टू ओमेगा। फिर अब क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विल बी वेलोसिटी ऑफ द सेंटर, है ना, जो भी सेंटर मूव कर रहा है ना। अगर फैन लटका हुआ तो फैन चल रहा है ट्रेन के साथ साथ, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर, जो कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ही होगा इफेक्टिवली, बट स्टिल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर प्लस द टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये ओमेगा आर, यानी दोनों को आप सुपरपोज करेंगे। सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट पी, कोई सा भी पॉइंट पी ले लो, तो क्या होगा? अगर मान लो ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है, इन दैट केस फैन घूम रहा हो, यानी ऑफ हो या ऑन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैन के हर पॉइंट के एक्सेलरेशन तो वो होगा ही होगा कि ट्रेन चल रहा है ओवरऑल। साथ में अगर घूम रहा है तो उसका एक अपना ओमेगा स्क्वायर अलग से होगा, अल्फा आर यानी टेंजेंशियल अलग से होगा, यानी इट विल बी द सम ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ए सेंटर प्लस ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल, यानी इन तीनों वेक्टर्स के समेशन होंगे। ध्यान रखना, ये 3 वेक्टर्स है, याद रखना। ठीक है ना? सर अगर फैन मूव नहीं कर रहा और वो मतलब मूविंग ट्रेन या जिसमें भी है, तो सर वो मूविंग ट्रेन या उसकी वजह से इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा ना, क्योंकि सर जितना ही वो रेजिस्ट करेगा उतना ही उसको हेल्प भी करेगा मतलब मूवमेंट में। तो फिर मतलब देखो वो रेजिस्ट वाला पार्ट हम नहीं देख रहे, हम कहने की ओवरऑल क्या अब वो रेजिस्टेंस हो रहा है या फैन के मोटर के अपने स्पीड के वजह से है। सी दैट्स नॉट समथिंग दैट वी आर कंसर्न्ड विद। वी आर कंसर्न्ड विद कि उस वक्त फैन के ब्लेड्स की अल्फा क्या है, अब वो किस किस वजह से है। well let's not take it that into our consideration. our consideration is कि उस समय अल्फा का वैल्यू क्या है, that's it, और कोई कंसीडरेशन नहीं। ठीक है ना? Excuse me, sir. Please tell the radial acceleration. बता रहे हैं ना? Excuse me, sir. हाँ बेटे। सर इसमें एट बी पे रेडियल एक्सेलरेशन कैसे आई थी, एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, बी पे देखो, बी पे रेडियल एक्सेलरेशन था ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर तो 100 है और बी पॉइंट का रेडियस 1 मीटर, वैसे तो 2 मीटर है, लेकिन बी बॉय बोला था मिड पॉइंट, तो इसलिए 1 मीटर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 यानी 100 इंटू 1 तो 100, और डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड सेंटर, तो टुवर्ड सेंटर ये, यानी कौन सा हो गया? आई कैप, तो इसने देखो मैंने 100 आई कैप लिखा था, अब तो मिटा दिया है। सर इसका v स्क्वायर बाय r भी होता है ना फॉर्मूला? देखो ऐसा है ना, v स्क्वायर आर भी बाय आर भी चलेगा, क्योंकि देखो v इज इक्वल टू ओमेगा और हमारा पास फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा को v बाय आर लिख सकते हैं, तो v स्क्वायर आर बाय आर भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना? तो इट्स अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग है, तो ऐसे अलग से कुछ नहीं है ना? अशिता आज की रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ ए, देखो रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ ए बेटे अशिता ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर 100 और ए पॉइंट का रेडियस है 2, तो 200 है, तो ये 200 ये
अब ये 37 तो ये भी 37, तो यानी 200 हुआ, और 37 तो यानी ये एंगल 37 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये 160 हो जाएगा और ये 120. That's how we did the calculation. ठीक है ना, अब तो मिटा दिया मैंने, एक बार चेक कर ले. Fine. चलो, so that was about your velocity and acceleration. ये जो रेडियल वाला है ये वो ओमेगा स्क्वायर आर होगा, और जो टेंजेंशियल वाला वो है इक्वल टू अल्फा. मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देता हूँ, जस्ट अ क्विक वार्म अप एंड देन वी विल गो इनटू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज, सपोज मैं कहता हूँ कि एक डिस्क है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो सेंटर है उसके कुछ डेटा दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 53 डिग्री, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड, क्वेश्चन क्या है? रेडियस 2 मीटर, ठीक है, और अल्फा तो क्वेश्चन वापस बोलना. 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना. क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए एंड बी. जल्दी करो. नहीं, ये लिखा क्या 20 मीटर पर सेकंड 25. ये एक डिस्क है, और इसके डिस्क का जो सेंटर है वो इधर मूव कर रहा है इस इंस्टेंट पे 20 मीटर पर सेकेंड, और इसी डिस्क का जो सेंटर का एक्सेलरेशन है वो गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड. तो गिवन है, मतलब ये डिस्क अब वो स्टेशनरी वाला नहीं है, यानी जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे ऐसे हो रहा है, यानी देखो एक जगह नहीं है, वो कहीं जा भी रहा है, तो यानी उसके सेंटर का भी कुछ वेलोसिटी है, हो सकता है कि एक्सेलरेशन भी हो, क्या पता, है ना. तो उसके बेसिस पे मैंने डेटा दिया है, और अब तुमको ए और बी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना. चलो गो अहेड करो, जल्दी करो, सो दैट वी कैन मूव इनटू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. वो सर एक्सेलरेशन 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. हाँ जी, सेंटर का. ठीक है, आई होप यू कॉपीड द डेटा आल्सो. डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर डायरेक्शन को अच्छे से देखो. ओमेगा क्लॉकवाइज, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज. सब एंगल तो अच्छा दे दिया. अभी ऐसा एंगल्स दिया हुआ. Comparing your process and calculation with mine as well. Shashwat and you guys given an answer. Utkarsh was also almost there. What about others? बाकी लोग आंसर करो बेटे, ट्राई करो ना, कोई टफ तो नहीं दिया मैंने. हाँ चलो कोई बात नहीं शाश्वत, आई विल टेक दैट इनटू अकाउंट, डोंट वरी. इतना तो समझ में आ गया मुझे. व्हाट्सएप पर भेजा. ठीक है, ठीक है, तो ठीक है ना. चलो नाउ लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सेंटर का वेलोसिटी है, तो वो तो देखो सब जगह सेम लगेगा, यानी okay, Akshita has also given an answer. Just quickly check that also. Akshita, तुमने लगता है एक कंपोनेंट शायद छोड़ दिया, मुझे लग रहा है. I think you have left one component probably. Seems so. बाकी मैं देख लेता हूँ. हाँ, तुमने शायद एक कंपोनेंट छोड़ दिया, ठीक है ना. चलो never mind, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ. देखो पहली बात तो ये जो वेलोसिटी है ना 20, इसके कंपोनेंट इधर आएगा 16
और इधर आएगा 12, है ना। 20 cos 37 that is 16 and 20 sin 37 that is 12, तो यानी 16 i cap minus 12 j cap। ये तो दोनों में ही कंट्रीब्यूशन आएगा क्योंकि सेंटर का तो यूनिवर्सल है। अब ओमेगा आर हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। जैसे ए पॉइंट पे ओमेगा आर क्या होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो ओमेगा का डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज, ये देखो ऐसे, यानी ओमेगा आर यानी क्या होगा 10 हो जाएगा, है ना। यानी प्लस 10 आई कैप, ये आ जाएगा। तो देखो 16 प्लस 10 दैट इज 26 आई कैप माइनस 12 जे कैप, दैट्स द आंसर। ठीक है, ओके उत्कर्ष इट सीम्स रिवाइज्ड योर आंसर व्हाट। अच्छा नहीं वही है, ठीक है ठीक है, तो दैट्स द आंसर। अब अच्छा सॉरी मैंने इसको बी पे लगा, सॉरी 10 आई कैप यहाँ ये वाला, ठीक है, यानी इक्वल टू 26 आई कैप माइनस 12 जे। नहीं अब थोड़ा B रिवाइज पॉइंट करा है, थोड़ा है ना? रिवाइज करके भेजा था, हाँ बेटे, थोड़ा सा अलग है लास्ट का, बस बी की एक्सेलरेशन थोड़ी बदल दी थी। हाँ चलो कोई नहीं जस्ट हैव अ लुक लेटर। तो लाइक ये वेलोसिटी हो गया, क्योंकि बी पॉइंट पे टेंजेंशियल बोलते दो डायरेक्शन हो गया। अगर मैं ओमेगा के हिसाब से चलता हूं तो ये देखो यानी डाउनवर्ड वाला लेना पड़ेगा। यानी बी पॉइंट के लिए क्या होगा, ओमेगा आर तो 2 है यानी माइनस 10 जे कैप, तो यानी बी पॉइंट पे होगा माइनस 10 जे। तो इसलिए बी पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो गया 16 आई कैप माइनस 22 जे। देख लो अच्छे से, तो 26 आई कैप है ना माइनस 12 जे कैप is the velocity and 16 i cap minus 22 j cap is the velocity of A and B. You have just calculated. अब आ जाओ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हमें तीन कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे वेक्टर के। क्या क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर। अब सेंटर का क्या होगा, 25 cos 53, so that's into 3 by 15, sorry 3 by 5, है ना। तो यानी कितना हो जाएगा 15, ओके। और ये वाला कितना होगा 25 into 4 by 5 यानी 20। यानी एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर तो दोनों का कंट्रीब्यूशन दोनों जगह सेम होगा, यानी 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये भी हो गया 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। देख लो अब समझ में आ गया, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर का कंट्रीब्यूशन 15 एंड 20। अब आ जाओ टेंजेंशियल कंट्रीब्यूशन। इस बार ध्यान से देखो जरा, अल्फा का डायरेक्शन ये है, यानी ए पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इधर वाला लेना पड़ेगा। तो अल्फा 10 r2 यानी माइनस 20 आई कैप। देख लो अच्छे से, यानी ए पॉइंट पे माइनस 20 आई कैप। यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बी में क्या होगा, ये देखो ऊपर की तरफ, तो ये हो गया अल्फा आर का कंट्रीब्यूशन कितना, अल्फा आर यानी प्लस 20 जे कैप। देख लो अच्छे से, तो प्लस 20 जे कैप, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि एक ओमेगा स्क्वायर आर भी तो आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर आर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज 25, है ना, और आर बोलते कितना हो गया 2। तो ए पॉइंट पे क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे होगा, क्यों, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ओमेगा स्क्वायर आर तो दैट इज 50 जे कैप लेकिन डाउनवर्ड्स। तो ए पॉइंट पे हो गया माइनस 50 जे कैप। बी पॉइंट पे क्या होगा, अगेन टुवर्ड्स सेंटर, ये देखो, तो ओमेगा स्क्वायर आर यानी क्या होगा माइनस 50 आई कैप। देख लो अच्छे से, यानी माइनस 50 आई कैप। तो कितना हो गया फिर 15 आई कैप माइनस 20 आई कैप यानी माइनस 5 आई कैप, और 20 जे कैप माइनस 50 जे कैप यानी माइनस 30 जे कैप। देख लो अच्छे से, और ये कितना हो गया 15 आई कैप माइनस 50 आई कैप, ठीक है ना, which is minus 35 I cap, और 20 J cap plus 20 J cap is 40 J cap. That's the case. Please have a look. अब ये आंसर आ गया, ठीक है। देख लो ये ना सारा वेक्टर का मामला है, और टेंजेंशियल रेडियल बस ये दो चीजें, और तो कुछ खास नहीं है। हाँ टेंजेंशियल में एक चीज जरूर है कि एक बार क्योंकि टेंजेंशियल 2 होता है तो वो सेंस ऑफ ओमेगा एंड अल्फा देख के हमें डिसाइड करना पड़ता है कौन सा लेना। जैसे इस केस में देख रहे हो
अलग अलग जगह पे अलग अलग हो रहा है। जैसे ये ओमेगा आर यहाँ पे ये वाला लिया, अल्फा आर ये वाला, ओमेगा आर हमने यहाँ पे ये वाला लिया और अल्फा आर ये वाला लिया, तो एक जे कैप और एक माइनस जे कैप, यहाँ पे एक आई कैप तो यहाँ पे एक माइनस आई। सो दीज आर द सटल डिफरेंसेस, है ना, दैट आर गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशंस। नाउ दिस इज सम काइंड ऑफ वार्म अप क्वेश्चन। इससे मुझे पता चल गया, इससे मुझे ये पता चल गया कि मुझे एग्जैक्टली कैलकुलेशंस कैसे करना है। नाउ लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन, ठीक है, और अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आई होप थिंग्स आर क्लियर फॉर दिस। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, मैंने वैसे तो सारा डिटेल में कर रखा है, यू कैन सी इट वंस मोर। इन द मीनवाइल मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, उसका रेडियस है 1 मीटर, 1 मीटर रेडियस है, इसको ओमेगा हमने दिया है 10 रेडियन पर सेकेंड, ओके, इसका जो ओमेगा हमने दिया है वो है 10 रेडियन पर सेकेंड, एंड द अल्फा इज 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान से सुनना सारे डेटा। अल्फा इधर 5 रेडियन पर सेकेंड, इधर ओमेगा सेकेंड स्क्वायर, और इधर ओमेगा हो गया 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, फाइन। और सुनो, इस डिस्क को हमने ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकेंड पे थ्रो कर दिया, यानी इस डिस्क को घुमाया भी है ओमेगा और साथ में इसका अल्फा भी है, और मैंने इसको ऊपर की तरफ यानी मोशन अंडर ग्रेविटी भी हो रहा है, ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो कर दिया विद अ स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, फाइन। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन इज फाइंड velocity vector and acceleration vector of the highest and lowest point of disk after एक काम करो, इसको ना 20 कर लो। मैंने ना थोड़ा सा डेटा चेंज किया, प्लीज नोट दैट, मैंने इसको 10 रखा था ना, इसको 20 कर रहा हूं, ठीक है ना, सो लिटिल चेंज। आफ्टर 3 seconds डिस्क वर्टिकल है। हाँ जी, ये डिस्क बिल्कुल वर्टिकल प्लेन पे है, इसका इनिशियल ओमेगा दे रखा है 20 रेडियन पर सेकेंड, इसका अल्फा दे रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको ऊपर फेंक दिया, घुमा के फेंका ऑब्वियसली कुछ ऐसे करके, और ऊपर फेंक दिया विद 50 मीटर पर सेकेंड to find out the velocity and the acceleration of the highest point and the lowest point, ठीक है, of the disk after 3 seconds। यानी अभी देखो कई लोगों ने ये सवाल पूछ रहे थे कि सर आपने ओमेगा जो दिया, ओमेगा तो थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा, लेकिन अभी तक जो हमने क्वेश्चंस पूछा था उसमें हम उस इंस्टेंट का पूछ रहे थे, तो इसलिए थोड़ी देर बाद क्या होगा नहीं होगा, so like we were not so much bothered about that, or rather we were not so much bothering, लेकिन अब हमें बॉदर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस बार पूछा ही है 3 seconds बाद, है ना। चलो go ahead, quickly find it out, I'm just pausing for a moment। Okay, now let me intervene and start the discussion। देखो पहली बात तो अभी जो वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकेंड फॉर द सेंटर, लेकिन 3 सेकेंड बाद पूछ रहे हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर जो है ना 3 सेकेंड बाद हो जाएगा इक्वल टू 20 जे कैप, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। और एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है क्योंकि ग्रेविटी के अंदर है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर हो जाएगा -10 जे कैप, सो देयरफॉर दो चीजें तो ये आ, अब और भी कंट्रीब्यूटर्स आएंगे बट ये दोनों तो रहना ही रहना। अच्छा अब आ जाओ ओमेगा, देखो ओमेगा क्लॉकवाइज 20 है लेकिन अल्फा एंटी क्लॉकवाइज 5 है, तो देयरफॉर आफ्टर 3 सेकेंड्स ओमेगा क्या हो जाएगा, 20 - 5 × 3 यानी ओमेगा भी हो जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड और क्लॉकवाइज, यानी आफ्टर 3 seconds ओमेगा विल बी 5 रेडियन पर सेकेंड, हैव अ लुक, क्लॉकवाइज। तो देयरफॉर अब मैं अगर वेलोसिटी ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट निकालता हूं तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर 20 जे का, और अल्फा आर तो खैर 1 मीटर है, अच्छा है, अल्फा आर क्या होगा, ये हो जाएगा टेंजेंशियल अल्फा, सॉरी वेलोसिटी मींस ओमेगा, तो ओमेगा तो 5 है और क्लॉकवाइज है, तो यानी यही डायरेक्शन,
तो यानी ये वाला हो, यानी +5i कैप, ये हो जाएगा +5i। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ये देखो ये वाला, तो वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट का तो इधर जा रहा था क्योंकि ओमेगा ऐसे है, तो लोएस्ट पॉइंट का क्या होगा ऐसे, यानी बस एक चेंज कर लेंगे, +5i कैप की जगह -5i कैप हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट आ गया L इज इक्वल टू 20j कैप -5i। वो अलग बात है कि जनरली वेक्टर में i कैप पहले लिखते हैं, j कैप बाद में लिखते हैं, बट आई थिंक इट्स ओके नाउ, यू कैन डू दैट, दिस मच यू कैन मैनेज योरसेल्फ। तो वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट 20j कैप +5i कैप, वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट 20j कैप -5i। वेलोसिटी वाला तो निपट गया। अब आ जाओ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में 3 कंट्रीब्यूटर्स, तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट देखते हो तो 3 कंट्रीब्यूटर्स में एक तो -10j कैप, और लोएस्ट पॉइंट के लिए भी ये कंट्रीब्यूटर तो रहेगा ही रहेगा, यानी -10j कैप, ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब आ जाओ ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर बोलते क्या होगा, अभी तो ओमेगा क्या 3 सेकंड में 5 है, तो ओमेगा स्क्वायर आर, तो पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट के लिए ये हाईएस्ट पॉइंट और ये लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए ओमेगा स्क्वायर आर क्या हो जाएगा ना, ओमेगा तो 5 है और टुवर्ड सेंटर यानी -25j कैप, तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए ओमेगा स्क्वायर हो गया -25j। लोएस्ट पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा ना, टुवर्ड सेंटर तो वही ओमेगा स्क्वायर आर, तो यानी +25j कैप, है ना, टुवर्ड सेंटर। हाईएस्ट पॉइंट के लिए टुवर्ड सेंटर ये है, लोएस्ट पॉइंट के लिए टुवर्ड सेंटर क्या हो जाएगा ना, अपवर्ड्स हो गया, यानी j कैप, ये यानी +25j कैप। कंफर्टेबल है टिल नाउ? इसके बाद क्या है ना, देखो इसके बाद है अल्फा आर। अल्फा इन दिस डायरेक्शन है, तो देयरफॉर हाईएस्ट पॉइंट के लिए क्या होगा ना, अल्फा आर इधर हो जाएगा, और लोएस्ट पॉइंट के लिए क्या होगा, अल्फा आर इधर हो जाएगा। ये देखो अल्फा, तो अल्फा आर मींस 5 × 1, यानी -5i कैप फॉर द हाईएस्ट पॉइंट, तो -5i कैप फॉर द हाईएस्ट, और लोएस्ट पॉइंट के लिए क्या होगा, +5i। Those are the 3 values, and therefore the high acceleration highest point will be -5i cap -35j cap, और ये हो जाएगा 5i cap plus, that's it। पूरा करेक्ट अभी तक तो मैंने एक युग का थोड़ा सा पार्ट करेक्ट है, ध्रुव ने भी भेजे हैं, पर तुम्हारा जो आंसर है मेरा पूरा करेक्ट है। करेक्ट है, अच्छा मैंने भी इतना चेक नहीं कर पाया सर एक्सेलरेशन आई है मेरी दोनों। हाँ वो मैंने देखा, अभी तुम्हारे एक्सेलरेशन वाला पार्ट तो मुझे दिख रहा है सही है ना। अब कहीं पे कुछ छोटे छोटे एरर्स है सबके, मतलब मैं देख रहा हूँ लगभग, पर चलो कोई नहीं, एटलीस्ट नाउ यू गॉट द आइडिया कि हाउ टू प्रोसीड विद, दैट्स द क्रिटिकल पॉइंट, कि कैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर लेना होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर लेना होता है, ओमेगा आर का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, अल्फा आर का डायरेक्शन ओमेगा आर के डायरेक्शन के साथ कब होता है और ओमेगा आर के डायरेक्शन के ऑपोजिट कब होता है, और ओमेगा स्क्वायर आर का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर हम कैसे लेते हैं, ठीक है ना। सो आई थिंक दीस वर द थिंग्स, आई होप यू गॉट द थिंग्स नाउ, हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन और लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, इसके बाद का जो कंसेप्ट है, इसके बाद का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखना ये आगे जाके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम बताता हूं क्या है उसमें, एंड दैट इज नो स्लिपिंग कंडीशन, ठीक है ना, नो स्लिपिंग कंडीशन। वैसे तो हम लोग इसको सर्कुलर मोशन के कंटेक्स्ट में अभी फिलहाल बात करेंगे, बट एक्चुअली you know what, it's a very general idea, it's not related to or restricted to circular motion in general necessarily। जैसे मैं 2 ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो 2 ऑब्जेक्ट्स विदाउट स्लिपिंग भी मूव कर सकते हैं, इधर विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहे हैं, और विद स्लिपिंग भी मूव कर सकते हैं। जैसे विद स्लिपिंग में भी कई सारे हो सकते हैं कि ऊपर वाला रेस्ट पे है
नीचे वाला जा रहा है तो देखो स्लिपिंग हो रहा है। हो सकता है कि नीचे वाला रेस्ट पे है, ऊपर वाला जा रहा है तो भी स्लिपिंग हो रहा है। हो सकता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए स्लिपिंग हो रहा है। हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन अलग अलग, ये देखो तो भी देखो स्लिपिंग हो सकता है। ये देखो ये भी स्लिपिंग, ध्यान से देखो, ये भी देखो दोनों मतलब ऑब्जेक्ट एक की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए। अब बेटे सर मतलब जब एक की वेलोसिटी ज्यादा हो और एक की कम तो ऐसे बिल्कुल 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 यू आर राइट। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कई जगह मैं देख रहा हूँ कि कई तरीके से दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो सकता है और हो सकता है कि बाई चांस स्लिपिंग ना भी हो। So therefore, can we hit the fundamental button as to what would be the criteria for deciding कि slipping होगा या slipping नहीं होगा? What would be the decision? So like two surfaces, ठीक है ना? Limiting दोनों friction slip- period and equal to static जो required है। हाँ, एक आइडिया होता है उनके बीच के फ्रिक्शन के बारे में जज करना, but that's a dynamic criteria, which we will be discussing no doubt, but we will be discussing in a different context, I mean in a different chapter. अभी हम लोग उसका सिर्फ काइनेमेटिक एस्पेक्ट देखें, है ना? तो क्या डिसीजन हो? तो टू सरफेसेस डू नॉट स्लिप, डिसीजन कैसे, किस बेसिस पे? सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं कि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ना हो बीच में तो वो स्लिप नहीं करेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो दोनों ने सेम आंसर, लेकिन एक चीज बताओ योग, तुमने बताया कि दोनों के वेलोसिटी सेम होने चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो क्या ये सेकंड वाला पॉइंट बताना जरूरी था? हाँ सर, सर डायरेक्शन सेम नहीं होगी सर फिर तो स्लिपिंग हो जाएगी ना। ओके अब सुनो, क्योंकि तुमने स्पीड नहीं बताया, तुमने बताया कि दोनों के वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तो वेलोसिटी सेम होने का क्राइटेरिया क्या है कि मैग्नीट्यूड मैचिंग और डायरेक्शन सेम। तो देखो तुमने जो सेकंड पॉइंट बताया वो एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी छुपा हुआ था। सो देखो यू डिड नॉट हैव मेंशन्ड द सेकंड पॉइंट, इफ यू वुड हैव ओनली सेड कि हाँ दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए स्लिपिंग नो स्लिपिंग के लिए, तो भी काम चल जाता। अच्छा इसी को उत्कर्ष ने दूसरे लैंग्वेज में बताया दैट कि दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए, यानी फाइनली डिसीजन क्या हो, and that is two surfaces do not slip if the relative velocity of the 2 points of contact is equal to 0, जिसको हम एक दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं दैट कि दोनों का वेलोसिटी मैचिंग यानी सेम होना चाहिए, तो इन दैट केस क्या होगा, स्लिपिंग नहीं। आई थिंक दैट्स अ फेयर क्राइटेरिया। ओके नाउ व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? क्या एक्सीलरेशन का कोई रोल नहीं यहाँ पे या उसका भी रोल है? यस एनी आइडिया? ना ये कंडीशन हो तो चल सही है। ओके ये कंडीशन होगा तो भी चलेगा, मतलब एक्सेलेरेशन का इतना हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। यस सर फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, एनीबॉडी एल्स विद एनी अदर ओपिनियन? सर वो तो पड़ेगा ना सर फर्क, जैसे मतलब एक एक्सेलरेट कर रहा है ज्यादा वैल्यू से, एक कम से कर रहा है, तो सर वेलोसिटी फिर तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएंगे सर एक टाइम पॉइंट के बाद, तो स्लिपिंग हो जाएगी। सर ये लिखा है ना कि हर समय ये रिलेटिव वेलोसिटी 0 हर समय, तो वो तो बाद में भी होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब ये सुनो, देखो देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। सपोज मैं इस इंस्टेंट पे पूछ रहा हूं कि बताओ ये दोनों सरफेसेस स्लिप कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस इंस्टेंट पे एक का वेलोसिटी देखूंगा, इस इंस्टेंट पे दूसरे का वेलोसिटी देखूंगा, अगर दोनों सेम सेम है और अगर मान लो पॉइंट्स कांटेक्ट में है तो यानी स्लिप नहीं कर रहा है, दैट इज द वे टू डिसाइड। बट अगर मान लो तुम कहते हो कि कहीं 5-6 सेकंड बाद स्लिप तो नहीं कर जाएंगे, दैट इज वेयर द एक्सेलरेशन विल नाउ कम इनटू द पिक्चर। तो देखो इस इंस्टेंट पे स्लिप कर रहा है नहीं कर रहा है विल बी डिसाइडेड by the velocities at this instant, but whether it will slip in future or whether it was possibly slipping some seconds back, that will be finally decided by the acceleration. तो इसलिए दो चीजें हो गया, एक है slipping at this instant और एक होता है sustained slipping, या no slipping at this instant and sustained no slipping at every instant। उसके लिए हमें क्या चाहिए ना, acceleration का भी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। क्या देखेंगे, तो देखो फॉर सस्टेनिंग रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 दिस नो स्लिपिंग कंडीशन, नो स्लिपिंग कंडीशन। अब यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर मैं ए रिलेटिव 0 बोलूंगा ना तो ये क्राइटेरिया गलत हो जाए, फिर पता नहीं क्या बोलना चाहिए, ए रिलेटिव along the line of contact,
should be equal to 0. Now you might say simply A relative बोल देते हैं, क्या दिक्कत है ना? A relative में थोड़ा दिक्कत है. क्या दिक्कत है थोड़ी देर बाद रियलाइज करोगे, बट अभी जस्ट नोट कर लो इज दैट A relative इस बार थोड़ा स्पेसिफिक है, एंड दैट इज along the line of contact. वो Sir, 0 होना चाहिए, तब जाके हम सस्टेन्ड नो स्लिपिंग कंडीशन को डिलीवर कर पाएंगे या एग्जिस्ट करा पाएंगे. That is what the point is. So you might be asking कि A relative 0 बोल देते, अब A relative along line of contact 0 बोल रहे हो, तो क्या दोनों में अंतर है? दोनों में अंतर है. क्या अंतर है? धीरे धीरे हम डिस्कवर करेंगे, थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हुए डिस्कस करेंगे या डिस्कवर करेंगे, बट अभी जस्ट इसको फिलहाल नोट कर. ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि A relative मैंने स्वीपिंगली क्यों नहीं बताया. ठीक है ना? तो टू अंडरस्टैंड हाउ अ बॉडी कैन मूव विदाउट स्लिपिंग, हमने जो फिगर दिया था या जो केस लिया था, दैट वाज फॉर, जो हमने केस लिया था दैट वाज फॉर 2 फ्लैट सरफेसेस. अभी लिया था ना मैंने, ये हमने 2 फ्लैट सरफेस के लेके किया. लेकिन पता है क्या है, फ्लैट सरफेस को लेके डिस्कशन आसान है. मैं अब डिस्कस करूंगा विथ 1 फ्लैट सरफेस एंड 1 सर्कुलर सरफेस. जैसे सपोज ये एक बॉडी है, ये मान लो फिक्स्ड ग्राउंड है. ठीक है, सपोज ये फिक्स्ड ग्राउंड है. ओके, यार ग्राउंड तो फिक्स ही होता है तुम बोलोगे, ये जरूरी नहीं. कई बार जो ग्राउंड होता है, सरफेस होता है, वो एक कन्वेयर बेल्ट भी हो सकता है, तो देयरफॉर मूविंग सरफेस भी हो सकता है. तो देयरफॉर इट्स नॉट दैट सरफेस मींस अ फिक्स्ड सरफेस, इट्स नॉट नेसेसरी. बट एनीवे, हम तो अभी फिलहाल फिक्स्ड ग्राउंड ले. और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है लेट्स से, तो क्या होगा? स्लिपिंग ही होगा. क्यों? तो जरा खुद सोचो, मेरे पास इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, बट एनीवे वी कैन विजुअलाइज. तो जैसे मान लो ये सरफेस है और मान लो ये गोल से कोई ऑब्जेक्ट है और मान लो इसका सिर्फ लीनियर वेलोसिटी v है, तो क्या होगा? ये चलता जाएगा और स्लिपिंग होगा ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि रोटेशन तो कर नहीं रहा है, सर्कुलर मोशन तो कर नहीं रहा है. तो देयरफॉर अगर मान लो इसका सेंटर का वेलोसिटी v है, दैट मींस एवरी पॉइंट हैज v एंड इवन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैज द सेम वेलोसिटी v. तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर उसका वेलोसिटी v है, तो देखो ये स्लिप करके जा रहा है या नहीं? तो देयरफॉर सर ये बट ऑब्जेक्ट तो ऐसा, स्लिपिंग मोड में रहेंगे. सर हाँ जी, अगर परपेंडिकुलर लाइन मतलब एक्सेलरेशन हो गई तो फिर वो कांटेक्ट छूट जाएगा. चलो इतना जल्दी हम कंक्लूड नहीं करता अच्छा है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी लेट्स नॉट इंटरव्यू इन बिटवीन. सर हाँ बेटे, सर ऐसा हो थोड़ी सकता है सर, मतलब रोटेट तो करेगा ही. अब देखो ये तो हमारे ऊपर है. जैसे मान लो मैंने क्या किया, जैसे ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को पकड़ लिया, अब इसको घूमने नहीं दूंगा मैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस मार्कर को यूं घसीट के ले जा. तो पॉसिबल तो है ना, इम्पॉसिबल मत कह दो. बट हाँ, अगर तुम बोलोगे नेचुरली तो ऐसे होगा नहीं, अगर मार्कर को छोड़ दोगे तो वो तो घूम जाता है, वो एक अलग कहानी. बट द थिंग इज दैट व्हाट आई हैव ड्रॉन इज नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी. अब वो कैसे पॉसिबल कराना है, दैट्स डिफरेंट. जैसे मैंने पकड़ के इसको ऐसे घसीट के ले जा रहा हूँ, यानी सिर्फ सेंटर का वेलोसिटी है, सेंटर मतलब हर पॉइंट का वेलोसिटी है, बट कोई ओमेगा नहीं है. पॉसिबिलिटी तो है ना. चलो एनीवे, नाउ लेट अस से वी हैव ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आल्सो. ठीक है, ऐसे केस में अगर मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करता हूँ, which is the lowest point and also a point on the ground as Q, तो velocity of Q तो fixed ground है, वो तो हो गया 0 obviously. But what about velocity of point P? Velocity of point P is equal to V I cap. सामने जा रहा था I cap, और ओमेगा भी तो होगा टेंजेंशियल. टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर है, इधर या इधर? ऑब्वियसली पीछे. क्यों? इधर, यानी माइनस ओमेगा आर आई कैप विच इज इक्वल टू v माइनस ओमेगा आर आई कैप. अब देखो पॉइंट P का वेलोसिटी हो गया v माइनस ओमेगा आर आई कैप और पॉइंट Q का वेलोसिटी 0. तो अब अगर ऐसे बॉडी को तुम चाहते हो कि स्लिपिंग ना करे, तो सोचो, अगर अब तुम चाहते हो कि ये बॉडी स्लिपिंग ना करे, यानी नो स्लिपिंग का कंडीशन क्या हो गया? V is equal to ग्राउंड omega v करना omega r चाहिए, से. ओमेगा आर माइनस And v this से 0. ऑपोजिट में. That means v is equal to omega. I hope that's okay now. यानी पहला क्राइटेरिया तो ये आ गया कि वेलोसिटी और ओमेगा जो मर्जी होने से नो स्लिपिंग कंडीशन नहीं हो पाएगा. अगर तुम नो स्लिपिंग चाहते हो, इन दैट केस ये मैग्नीट्यूड्स ऐसे होने चाहिए. सिर्फ वही नहीं, उनके डायरेक्शंस भी क्रिटिकल है, क्योंकि ये ओमेगा मैंने क्लॉकवाइज लिया, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज करके v इक्वल टू ओमेगा करो तो भी नहीं हो पाएगा. क्यों? फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज करो फिर तो ओमेगा भी सामने की तरफ हो गया,
तो ये v प्लस ओमेगा हो गया, अब जीरो कहां से हो जाएगा, है या नहीं? तो देयरफॉर अगर इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है और अगर क्लॉकवाइज है तो ही जाके नो स्लिपिंग कंडीशन का पॉसिबिलिटी, और वो कितना होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा। तो यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड v इज इक्वल टू ओमेगा मैच करने से नहीं चलेगा, हमें उसके सेंस ऑफ रोटेशन को भी चेक करना पड़ेगा। खैर, what is the final outcome? Final outcome is that the lowest point in this case, which is the point of contact, that should have a velocity 0. That's it. That's the main criteria. अब उसके लिए जो ओमेगा चाहिए, v चाहिए, वो हमारा ड्यूटी। या अगर तुम उसको रन कर रहे हो, then you have to run it in a way so that the v and omega are related in this fashion with correct sense of rotation. अभी रुको एक चीज और, इस केस में you might say acceleration तो है ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अच्छी बात है। तो यानी क्या होगा, ये तो सस्टेन करेगा फिर, क्यों, क्योंकि v वही है, ओमेगा वही है, तो देखो सस्टेन कर गया। लेकिन अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, अगर इस वक्त मैं पूछूंगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ q, तो क्या बताओगे? एक्सेलरेशन ऑफ q कितना है? q इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो 0 है। क्यों? ग्राउंड तो रेस्ट पे लिया ना मैंने, ये देखो फिक्स्ड ग्राउंड लिया मैंने, तो देयरफॉर इट इज एट रेस्ट। तो क्योंकि वो रेस्ट पे है तो देयरफॉर क्या हो गया, v is equal to omega, it is at rest, so therefore there is no velocity, so there is no acceleration। ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ मुझे, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट b होगा क्या? हाँ जी सर होगा। कितना होगा सर वो अल्फा आर के बराबर होगा। अल्फा तो है ही नहीं, तो सर 0 होगा। इज इट सो? बट रेडियल भी तो होगा, वो रेडियल होगा ना ओमेगा स्क्वायर। हाँ यानी क्या होगा, रेडियल वाला होगा, बिल्कुल सही पकड़ा है। यानी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट भी है, कितना है ना, देखो इन एनी केस, ऐसे केस में 3 एक्सेलरेशंस होते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर वो तो नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं ले जा रहा हूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर नहीं है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से भी ले जा रहा हूं, यानी अल्फा भी नहीं है, लेकिन रेडियल से तो छुटकारा नहीं मिलेगा ना। देखो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर जी कैप। अब बताओ, ये जो केस है ये सस्टेन्ड प्योर रोलिंग होगा, मतलब सस्टेन्ड नो स्लिपिंग होगा या नहीं? नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा सर। सर अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट 0 होगा सर। हाँ, यानी क्या हो रहा है, देखो ये एक्सेलरेशन तो आ रहा है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये जे कैप के अलोंग आ रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा अलोंग लाइन ऑफ कांटेक्ट, तो क्या एक्सेलरेशन है ना, ग्राउंड का भी 0 और पॉइंट p का भी 0। देयरफॉर मैंने देखो यहाँ पे a रिलेटिव 0 नहीं लिखा, मैंने लिखा है a रिलेटिव अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट 0 होना चाहिए फॉर सस्टेन्ड नो स्लिपिंग कंडीशन। सर ये तो डेफिनेशन पे डिपेंड करता है ना, प्योर रोलिंग में ठीक है, लेकिन जब आप इसको नो स्लिपिंग में लिख रहे हो तो इसका मतलब कि वो वही पॉइंट हमेशा के लिए कांटेक्ट में, यहाँ पे तो पॉइंट का कांटेक्ट लूज कर तो रहा है। पॉइंट बदलते जाएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, एक सेकंड, इनफैक्ट यू नो व्हाट, हो सकता है तुम एक सवाल पूछोगे, ये तो एक्सेलरेशन है, इसका नहीं है, तो ए रिलेटिव तो है, तो ये स्लिप क्यों नहीं कर रहा है ना? तो उसका एक्सप्लेनेशन समझो। इफ यू लुक एट एनी पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट ले, और इसका ट्रेजेक्टरी अगर बनाओगे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू लुक एट द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस पॉइंट, इट वुड बी समवॉट लाइक दिस। जैसे मान लो अगर कोई गोल सा ऑब्जेक्ट ले लो, ये पॉइंट ले लो, इसका ट्रेजेक्टरी पता है कैसे होगा, ये ऑब्वियसली नीचे आएंगे और फिर ऐसे जमीन को टच करेंगे, फिर क्या होगा, फिर ये ऐसे उठ के चले जाएंगे। तो देयरफॉर एट वेरियस मोमेंट्स, थोड़ा समझो, एट वेरियस मोमेंट्स different points will come into point of contact with the ground and they will move away, and then some other point will come into contact with the ground, and then again it will move away and some other point will come into contact with the ground। यानी ये continuous process चल रहा है, जिसमें थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छे से सुनना, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग मोमेंट्स पे ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता जा रहा है, और कांटेक्ट में आया और चला गया, कांटेक्ट में आया और चला गया, और हर पॉइंट में ये सेटिस्फाई होगा जिस वक्त कांटेक्ट, एंड दैट इज व्हाट v इज ओमेगा, एंड इट विल satisfy the criteria of no slip। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये समझो ओमेगा स्क्वायर जी कैप, ये क्या कर रहा है, ये वही जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना इसका, देखो ये कैसे हुआ, वो पॉइंट देखा होगा ऊपर से नीचे आया है ना, यूं आया और फिर चला गया, तो देखो क्या हुआ,
ठीक एक मोमेंट के पहले वो ऐसे जा रहा था और एक मोमेंट के बाद वो ऐसे गया, यानी उसके एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है ना, तो वो जो ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है that is being provided by this omega square r j cap, यानी वो प्योर मतलब स्लिपिंग वाले को इफेक्ट नहीं किया, वो क्या किया, उस पॉइंट को नीचे से ऊपर ले गया और चला गया, लेकिन स्लिपिंग नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि स्लिपिंग वाले में जो v इक्वल टू ओमेगा आ रहा है वो हमेशा के लिए सेटिस्फाइड। आर गेटिंग इट? सो देयरफॉर फॉर सस्टेन्ड प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इसको हम लोग बोलते हैं, यानी विदाउट स्लिपिंग यानी नो स्लिपिंग कंडीशन, क्या हो गया ना, एक्सेलेरेशन नहीं, एक्सेलेरेशन अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट जीरो होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द पॉइंट। अगर मान लो लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट है भी तो हमें इतना कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअली वो कंपोनेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक पॉइंट के साथ स्लिपिंग नो स्लिपिंग नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग मोमेंट्स पे अलग अलग पॉइंट के साथ स्लिपिंग एंड नो स्लिपिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करा। अभी इस वक्त जो है ना ये वाला पॉइंट है, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट नीचे आएगा, तब तक ये पॉइंट ऊपर चला गया होगा, है ना, फिर थोड़ी देर बाद ये पॉइंट नीचे आएगा, तब तक ये वाला पॉइंट ऊपर जा चुका है, and so on. So at various moments, various different points are coming into contact and going away, coming into contact and going away, but they are not slipping. तो no slipping के लिए ये क्राइटेरिया, और वो जो नीचे आके ऊपर जा रहा है उसके लिए ये चीज हो गया, और रिलेटिव एक्सेलेरेशन along the line of contact जीरो होगा, तो in that case क्या होगा, sustained slipping हो जाएगा, sorry sustained no slipping हो जाएगा और perpetuate यानी फॉरएवर, अगर ये सारी कंडीशन सैटिस्फाइड है। ठीक है ना? चलो ठीक है, वी जस्ट स्टार्टेड द डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट। आई मीन इट्स अ इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ डिस्कशन। आई मीन तो थोड़ा सा अधूरा रह गया, चलो कोई बात नहीं, वी हैव जस्ट मैनेज्ड टू डू जस्टिस टू द एक्सटेंट दैट वी कुड डू टुडे। टुमारो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस पार्ट एंड दैट इज प्योर रोलिंग एंड दैट इज विदाउट स्लिपिंग, यानी नो स्लिपिंग का कंडीशन, और फिर उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्राइटेरिया होता है। And once we do questions, I think the concept will become more and more clear. लेकिन मैं एक बार बताना चाहूंगा इस दैट A relative जीरो नहीं है, A relative along the line of contacts। हाँ जल्दी बताओ सर, ये वाला जो आपने कंडीशन लिखी है ये सिर्फ प्योर रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग में नो स्लिपिंग के लिए, अगर सस्टेन नो स्लिपिंग के लिए, अगर वैसे आप कहो कि सस्टेन नो स्लिपिंग, उसके लिए तो A relative ही होगा कि मान लो फ्लैट सरफेस ले लो, तो फ्लैट सरफेस के लिए अगर परपेंडिकुलर होगा तो कांटेक्ट ही छूट गया। देखो फ्लैट सरफेस के लिए क्या है ना, तो भी तो ये कंडीशन तो फिर भी चलेगा ना, A relative along the line of contact। अगर A relative along the line of contact के परपेंडिकुलर होगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा, लेकिन कांटेक्ट छूटते ही नो स्लिपिंग कंडीशन का वैलिडिटी भी खत्म हो। सो देयरफॉर इवन दिस इज ट्रू फॉर इवन फ्लैट सरफेस आल्सो। ये तो ट्रू है ही ना, फ्लैट सरफेस में तुम कह रहे हो कि अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा तो सरफेसेस अलग हो जाएंगे, जैसे सरफेस अलग हो जाता है in that case discussion of slipping no slipping condition is already over, तो therefore उसको डिस्कस करने का ही जरूरत। लेकिन कम से कम सर्कुलर वाले केस में हम A relative को जीरो जबरदस्ती बोलेंगे तो फिर ये अड़चन क्रिएट करेगा। दैट वाज द मेन इशू। ठीक है ना? योग सर मैं ये कह रहा था सर, इसमें हम नो स्लिपिंग के लिए ये भी तो कर सकते हैं कि जो वो ग्राउंड है वो माइनस उसी वेलोसिटी से ऑपोजिट। ओके चलो मैं इसको रोक रहा हूँ। सुनो, ग्राउंड रेस्ट होना कोई कंडीशन नहीं, ग्राउंड भी चल सकता है। अभी हम लोग जस्ट बेसिक स्टार्ट किया कि ग्राउंड रेस्ट पे है, एक गोल सा ऑब्जेक्ट विदाउट स्लिपिंग जा रहा है तो क्या हो। कल हम लोग इसको और एक्सटेंसिव डिस्कस करेंगे, जब ग्राउंड भी चलेगा वो भी चलेगा, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, हर चीज। डोंट वरी, वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। ठीक है ना? चलो ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स टुमारो। सो लेट्स कीप दैट द टुमारो's डे रिजर्व्ड फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन इन मोर डिटेल्स in more different situations. Fine? चलो आज के लिए इतना बेटे, हैव अ गुड डे। सर वो प्लीज साइड हो जाओ। हाँ बेटे सर एक बार साइड हो जाओ, वो देखना तो स्क्रीन पे जो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा चलो ठीक है, मैं जस्ट इसको रिकॉर्डिंग पॉज करता था, फिर थोड़ी देर साइड हो। ठीक है चलो ओके बेटे, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।